महावीर नारायण का नाम उच्चारण किया था, वो इतनी शुद्धता से उच्चारण किया था कि वो उससे उसका इफेक्ट अलग ही आया। So when people say, let's go to the temple today, they are thinking only about their own problems. तो जब लोग मंदिर में आते हैं तो वो अपने ही जो विषय है, जो भी उनके मन में जो प्रॉब्लम्स है वो लेके आते हैं। But when they see Lord Jagannath on the street, they are stunned, they are surprised. पर जब वो भगवान जगन्नाथ जी को रास्ते पे देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं। And when they say, oh, today is Jagannath Rath Yatra, अभी बोलते हैं, अरे आज तो जगन्नाथ रथ यात्रा है। and that Jagannath is actually Namabhas, it's pure name. और वो जगन्नाथ जो है वो नामाभास है, वो शुद्ध नाम है। So in this way, people actually get to an opportunity to do pure devotional service simply because they see the Lord suddenly on the street. तो प्रभु जी कहते हैं कि इस प्रकार से लोगों को शुद्ध भक्ति करने का अवसर मिलता है क्योंकि वो जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में रास्ते पे देखते हैं। So, by the mercy of the Lord, they are able to think of the Lord purely, and that is actually pure devotional service. तो भगवान की कृपा से वो जगन्नाथ जी के बारे में शुद्धता से सोच सकते हैं, उस हिसाब से उनको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। That is the beginning sentence of this purport. और यही है जो ये जो तात्पर्य बोला गया है उसका ये पहला Pratham Vakya. So read that first sentence. भगवान की कृपा प्राप्त हुए बिना मनुष्य ना तो भगवान की को समझ सकता है, ना ही उनकी भक्ति में लग सकता है। So without the Lord's mercy, one cannot understand the Lord, nor can he engage in Lord's pure devotional service. प्रभु जी कहा कि भगवान की कृपा के बिना ना तो हम उनके साथ एंगेज हो सकते हैं, ना हमको उनकी कृपा मिल सकती है। So what is the verse, chapter number 13? 13:18. 13? 18? Huh? Atara. Okay, so you can see how Prabhupada is beginning this purport that by actually Lord's mercy, he is going on the street, and at that time, by chanting his name without any motivation, they are engaging in devotional service. And by that, they will actually understand who is the Lord. आप देख रहे हैं कि भगवान की कृपा की वजह से जब वो भगवान को देखते हैं रास्ते पर तो वो शुद्धता से सोचते हैं और उससे उनको भगवान क्या है वो समझ में आ सकता है। Even if they were to simply say, oh, ये ISKCON का program है, still that is also pure chanting because ISKCON is established by the pure devotee Srila Prabhupada. अगर ये उसे ये भी बोले अरे ये तो इस्कॉन का प्रोग्राम है, फिर भी उनको शुद्ध भक्ति की प्राप्त होगी क्योंकि इस्कॉन को शुद्ध भक्त ने स्थापित किया है। So this movement of Srila Prabhupada is an extraordinary movement for forcibly giving the highest blessing to everybody. तो ये जो प्रभुपाद जी का मूवमेंट है इस्कॉन, ये इतना बड़ा अच्छा बड़ा मूवमेंट है कि वो सबको जबरन भक्ति दे रहे हैं, सबको कृपा दे रहे हैं। Pure devotional service, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति दे रहे हैं। And that is not very easy. We are chanting Hare Krishna and we feel, I wish I could chant purely. तो ये कोई साधारण नहीं है। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये महामंत्र को हम एकदम शुद्धता से जप कर सके। But now the Rath Yatra is going on the street and everybody is saying, oh, Jagannath Rath Yatra, and that's pure chanting. तो अब जब रथ यात्रा जब रास्ते पे होती है तो
तो सबसे जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं, वो है शुद्ध नाम ले रहे हैं, वो शुद्ध जपा कर रहे हैं। So now somebody can say, well, if they are chanting the holy name purely, what about us? Because we are doing service in the temple all the time. तो ये एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर जो लोग बाहर के लोग भगवान का शुद्ध नाम ले रहे हैं, तो जो भक्त इन्वॉल्व है जो इसमें है, उनका क्या? But we have also chanted this name purely in the beginning when we were saying, oh, आज रथ यात्रा होगा जगन्नाथ का. हाँ, तो बोलता है हमने भी पहले भगवान का शुद्ध नाम लिया था, जब हम इस्कॉन में नहीं आए थे, तो बोले आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। Because of such chanting, we have now got the chance to do more service. हाँ, क्योंकि हम ये महामंत्र जप करके हमको अब और सेवा का हमको अवसर मिला है। But the point is, even though Ajamila chanted the holy name purely, after he was saved from the Yamadutas, the Vishnudutas told him, now you go to Haridwar and practice more bhakti. हाँ, अजामिल ने भले ही शुद्ध नाम जप किया था, तो विष्णु दूता ने उनको बोला था कि अब जाके हरिद्वार में जाके आप शुद्ध भक्ति कीजिए। So he did not immediately go back to Godhead. वो उस वक्त ही भगवान के पास नहीं गए। Therefore, we must understand that chanting the holy name like this, Achanak, purely, it actually brings us into service so that we can become actually free of our material desires. तो हमको ये समझना चाहिए कि ये शुद्ध नाम लेने से फिर हमको और सेवा भाव का मिलता है, और फिर वो सेवा भाव से फिर हम अपने आगे हम प्रस्थान कर सकते हैं भक्ति में। So, but that is why when we come, we have chanted the name purely when we first, read Prabhupada's books. Oh, we didn't know Krishna is Supreme Personality of Godhead, and that Krishna was pure chanting. तो इसलिए जब हम लोग पहली बार जब आते हैं तो हमने शुद्ध नाम लिया होता है, फिर उसके बाद आपको पता चला अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। No. When we say I didn't know Krishna is the Supreme Personality of Godhead, that Krishna is chanted purely. तो हमको ये नहीं पता था कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो जो नहीं, जब हम बोलते थे प्रभुपाद जी का किताब पढ़ने के बाद, अरे कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नहीं मालूम था मुझे, उसी समय जो कृष्णा का नाम हम लिया वो शुद्ध नाम है। My English is not Your that. Hindi is better. Yeah, but my thought process is in English, so Anyway, so this is a very subtle theological point. Why is it said then even if chanting the holy name once liberates a person? तो ये सूक्ष्म है, ये जो प्रभुजी ने आना है कि क्यों एक बार मंत्र जपने से क्या होता है। हाँ, सब शास्त्र में दिया हुआ है। प्रभुपाद जी ने भी बोला एक बार अगर भगवान का नाम शुद्ध नाम एक व्यक्ति लेता है तो उनका प्रकृति दुनिया का जीवन बंद होएगा। तो हमको ये संशय आ सकता है कि अगर हम इतना साल से जप करते हैं क्यों? सो इसका पॉइंट है because we chanted the name purely in the beginning, because we are just talking about Krishna, we are thinking about Krishna, we are telling people about Krishna. I went to ISKCON, it's very nice, it's interesting. So many times we are chanting purely. इसी प्रकार हमको भगवान को सेवा करने के लिए मौका मिला है। लेकिन जब वो सेवा हम करते हैं उसी समय हमारा जो वासना है, वो कर्मिक सब कुछ है, उसका प्रभाव भी है। तो हम बहुत ध्यान से सेवा करने का है, तो जो हमारा कर्म प्रभाव है पिछले जन्म से और इस जन्म का काम से, उसको हम अंदर आने के लिए नई चांस देने का। दैट इज सो अगर हम कैजुअली करेंगे भक्ति, मंदिर में आए ये करें भगवान ये करो
प्रॉब्लम है घर में, ये वो, then that pure chanting is not there. तो इसलिए अजामिल का चरित्र दिया है कि उन्होंने एक बार भगवान का नाम प्योर लिया, उसके बाद उनको और प्योर सेवा करने का मौका दिया है विष्णुदूत। अगर वो हरिद्वार में जाके अगर बराबर प्योर सर्विस नहीं किया तो और टाइम लगेगा फल मिलने के लिए। इसी प्रकार सभी लोग को पहले शुद्ध नाम बोलने का मौका मिलता है हरे कृष्णा मूवमेंट से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कौन है शुद्ध भक्त, तो उन्होंने बोला कनिष्ठ भक्त है वो कम से कम एक बार भगवान का नाम शुद्ध नाम लिया, और मध्यम अधिकारी है सदा भगवान का शुद्ध नाम जपता है। और महाभागवत जो है जिसको देखने से बाकी लोग, कर्मी लोग भी, नास्तिक लोग भी शुद्ध नाम बोल सकता है। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी का इस्कॉन इतना प्योर है, उन्होंने बनाया। हम नहीं सोचने का है हम जो उन्होंने किया उसको हम अभी नाम हम कर रहे हैं, नहीं। प्रभुपाद जी अभी भी है और भगवान अभी भी है। तो दो जो प्योर इस्कॉन है उसको चलाने वाला कौन है? प्रभुपाद जी और भगवान। मैं भी बहुत आई बीन हियर फॉर 44 को कितना हिंदी में 44, मैं भी 44 साल भक्ति किया है इस्कॉन में। लेकिन मेरा चिंतना ऐसा है, मैं एक उदाहरण देता हूँ कभी कभी लोग को। अगर मंदिर का यहाँ जमीन है उसमें एक एंट चिड़िया राइट चींटी होगा और ये चींटी बहुत व्यस्त है, यहाँ घूमता है वहाँ घूमता है, वो ये करता है वो करता है। और वो चींटी सोच सकता है कि जो मैं करता हूँ ये बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ बहुत भक्त है और भगवान है, तो जो भक्ति का काम चल रहा है वो देयर इज नो कनेक्शन, इन दोनों का संबंध कुछ नहीं है, जो चींटी करता है और भक्त करता है। इसी प्रकार जो ये इस्कॉन है, आध्यात्मिक इस्कॉन है, हाँ, उसमें मैं एक चींटी का समान हूँ। मैं सोच सकता हूँ मैं इतना सेवा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन वास्तविक एक्चुअल भक्ति श्रील प्रभुपाद और उनका कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतरंग भक्त सेवक, अंतरंग सेवक करोड़ 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 हैं, वो लोग करते हैं। आल्टर में हम ऐसा नहीं सोचने का है सिर्फ भगवान है, भगवान कभी भी अकेला नहीं है, उनके साथ कभी भी करोड़ 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 शुद्ध भक्त हैं, हम नहीं देख सकता बस। तो वो लोग भगवान को बहुत अच्छी तरफ से सेवा करते हैं। मैं जैसा लोग चिड़िया समान है, बाहर ये वो करके मैं सोचता हूँ मैं भक्ति करता हूँ, इस्कॉन का चलाता हूँ, नहीं। सो हमारा चिंतना ऐसा होना चाहिए, जब मैं मंदिर में आ गया सब भक्त लोग बोल सकता है ये वैकुंठा है, लेकिन ये वैकुंठा है का मतलब क्या है? यहाँ भक्त लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। मैं भी एक चींटी का समान है, चींटी राइट, चींटी का समान है, मैं समान हूँ। और मैं यहाँ एक बार और 2 बार या 3 बार शुद्ध नाम लिया, क्यों? बिकॉज भगवान इस्कॉन से टच हुआ, और इस्कॉन वो आध्यात्मिक इस्कॉन है। ये इस्कॉन में बहुत तरफ का चींटी है,
So this ISKCON is full of lot of ants. That we are. We should think that. We should not think we are bhakt. Because we are given a chance like Ajamila to do bhakti properly. तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपने हमको सोचते कि हम चींटी के समान हैं और हमको अजामिल जैसा हमको अभी ये सेवा करने का मौका मिला है। तो जब हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध होएगा, हाँ यहाँ बहुत बहुत बड़ा भक्त हैं, वो अभी भी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ रहने के लिए मुझे भी अब एक मौका मिला हुआ है और ये मैं बराबर से काम करने। अगर हम सोचेंगे मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं ही कर रहा हूँ जगन्नाथ रथ यात्रा, नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान का इच्छा नहीं है तो ये रथ यात्रा नहीं हो सकता। इसलिए हम दिया है, कभी कभी रथ आगे जाएगी और कभी कभी आगे नहीं गया, तो इन्होंने लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, इससे हम समझ सकता है कि अपना हम लोग ये रथ को पुल करने से वो रथ नहीं जा रहा है, भगवान का इच्छा से रथ जा रहा है। हाँ, तो इसी प्रकार हम कभी नहीं भूल जाने का है कि ये रथ यात्रा भगवान का मर्जी से हो रहा है और भगवान ने उनका मर्जी से बाहर आ रहा है और प्रभुपाद जी का मर्जी से ये लोग देख के बोलते हैं ये इस्कॉन का प्रोग्राम है, वो जगन्नाथ का रथ यात्रा है, भगवान आया है, बात बोलता है। At that time they are chanting. So this way ISKCON everywhere is giving everybody a chance to chant the holy name, because Prabhupada जी हमारा स्थापक आचार्य वो महाभागवत है। तो जब ISKCON को लोग देख रहे हैं वो महाभागवत को देखने का समान है, इसलिए ISKCON को देख के लोग कृष्णा का नाम लेते हैं। वो प्योर नाम है, वो शुद्ध नाम लेने से लोग का शुद्ध भक्ति शुरू हो गया। देखो कितना प्रभुपाद जी ने बंदोबस्त किया है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला महाभागवत व्यक्ति जो है उनको देखने से सबको मुंह से शुद्ध नाम अपने आप निकलता है। Hindi is okay, not okay. So we must never forget that we are a small चीटी, we are small चीटी part. हम लोग चीटी के समान है और चीटी का पार्ट हम प्ले कर रहे हैं ISKCON में, और वास्तविक आध्यात्मिक ISKCON प्रभुपाद जी का है। हम कभी नहीं भूल जाने का। अगर हम भूल जाएंगे हम भी जैसा मठ हैं वैसा हम भी मठ बनेंगे, बस पैसा लेने का है। नो प्योर। सो इन प्योर भक्ति, सो ISKCON में जो सब आरंभ स्टेज का भक्त हैं और हम सब आरंभ, वो लोग जब सोचेंगे ऐसा प्रभुपाद जी का ISKCON है और उनका अंतरंग भक्त करोड़ हैं यहाँ, वो संभालते हैं, और इसमें हम भी थोड़ा अच्छा सेवा देने का जब ऐसा हमारा दिल में जब तक है, तब तक जब हम करते हैं, जो सेवा हम करते हैं, वो सब शुद्ध भक्ति के पाठ हो जाएगा। नहीं तो हमारा कर्म वासना सब आएगा और पहले हम शुद्ध नाम जप किया और मंदिर में आ गया और उसके बाद हमारा काम चलेगा। भक्ति करेगा, पैसा लेगा, भक्ति करेगा, कुछ ऐसा बस ऐसा ना। सो जब ISKCON को अंदर आने के लिए मौका मिलता है लोग को, जब वो देख के ISKCON को देख के बोलते हैं कृष्णा का मूवमेंट है, दैट इज ऑल प्योर चैंटिंग। वो प्योर चैंटिंग से जैसे आजामिल को और सेवा करने के लिए मौका मिला, वैसे हमको भी मिलते हैं। इसका मतलब है हम भक्त नहीं बनाए अभी तक, भक्त बनने का मौका मिला हुआ है।
ऐसे सोचने का, ऐसा नहीं सोचने का है मैं अभी अंदर आ गया, क्यों आ गया, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, नहीं। प्रभुपाद जी का कृपा से हम शुद्ध नाम लिया, बिना हमारे मुझे हमको नहीं पता था, उसके बाद हम आए हैं अंदर, वो उसके लिए भक्त को मेरिट है। सब लोग फुल फुल टाइम भक्त नहीं बनते हैं, ठीक है, बट लेकिन हम ऐसा सोचने का है। So this Rath Yatra is a very great thing, very great thing. So we should think when we go out, how can I get everybody to see Jagannath? How can they say, even if they don't say anything, even if they hear the kirtan, if we are thinking we are chiti, right? Chiti, Yeah. chiti. Then we are chanting, then that chanting is pure, like when we first chanted, oh, Hare Krishna Mandir mein main ja raha hoon. That Hare Krishna is pure chanting. Like that. Is my point clear? हाँ? बट अगर अभी हम चैंटिंग करेंगे लेकिन हम नहीं सोचते हैं मैं चीटी की समान हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं ही चलाता हूँ इस कान को, then it's not शुद्ध नाम. So शुद्ध नाम we have got, सबको मिला हुआ है शुद्ध नाम, और उसको शुद्ध रखने का. जैसा आपको पैकेट में किसी ने एक रसगुल्ला दिया, वो अच्छा है, नया पैकेट में आया है, शुद्ध है, अगर उसको हम जमीन में डालेंगे तो इसी प्रकार जो शुद्ध नाम हमको मिला है उसको हृदय में रख के पूजा करके, अब कैसे भी I got this chance to chant Krishna's name simply by saying ISKCON, simply by saying Prabhupada, simply by saying Krishna Mandir, simply by saying मैं Sunday program को जाऊंगा, everything is same as Krishna. This is why it is said. So Prabhupada is so pure, so pure. Therefore it is said that Krishna's name, Krishna's form, Krishna's dham, Krishna's paraphernalia is same. And because Srila Prabhupada's ISKCON is part of Krishna's paraphernalia, anything you say about Krishna, ISKCON also becomes pure chanting of Krishna's name. It is there. हाँ, तो प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि जो भी कृष्ण का नाम है, कृष्ण की जो भी चीज है, क्योंकि प्रभुपाद जी वो शास्त्र में दिया है, कृष्णा और कृष्ण का नाम, कृष्ण का दाम, कृष्ण का पार्षद, और कृष्णा के लिए सब भक्ति के लिए जो कुछ सामग्री है वो सब कृष्णा के समान है. इसलिए जब पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, शिव जी ने बोला उनको, पार्वती ने बोला कोई लोग मुझे पूजा करते हैं, कोई लोग मेरा पुत्र है गणेश और कार्तिकेय स्कंदा, उन लोग को तमिल में बोलते हैं मुरुगन, उनको पूजा करते हैं, और कोई लोग आपको पूजा करते हैं, और मैं भी आपको पूजा करता हूँ. ये पूजे से, ये सब पूजा में कौन सा ऊंचा है? पार्वती को भी संशय है. तो शिव भगवान ने बोला सर्वेशाम आराधनम परम विष्णु आराधनम, सर्व ईशा, सब ईश है, राइट, ईश्वरा परमा कृष्णा. तो इसलिए सब ईश का पूजा में सबसे ऊंचा पूजा है कृष्ण का पूजा. सर्वेशाम आराधनम परम विष्णु आराधनम. देन पार्वती को थोड़ा मूड खराब हो गया, डल हो गया, क्योंकि मैं भगवान को पूजा नहीं करता हूँ, मेरा प्रथम पूज्य देवता आप ही है. तो शिव जी ने बोला तस्मात् परतरम देवी, उससे ऊंचा पूजा तदिया नाम समार्चनम. तदिया मीन्स वॉट एवर बिलोंग्स टू, जो कृष्ण के संबंध में है उसको समार्चनम. इफ यू टेक इट एज इक्वल, देन दैट इज एक्चुअली बेटर.
तो जब लोग मानते हैं कृष्णा, प्रभुपाद जी का इस्कॉन, कृष्णा और दोनों में अंतर नहीं है, वो इस्कॉन चलाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो चीटी हूं। अब इस्कॉन का नाम लेने से भी लोग को भक्ति प्राप्ति हो जाएगा, इतना बड़ा। तो अगर हम इसको खराब करेंगे, हमारा इस्कॉन इसमें कर दिया, इसलिए तो और एक चीटी है और दूसरा चीटी को बुलाता है, वो मंदिर में नहीं आया, वो चीटी का घर में आ गया। तो अगर हम लोग को इस्कॉन में ले आओगे, तो प्रभुपाद जी का इस्कॉन में ले आने का, हमारा इस्कॉन में नहीं है। बट अभी चल रहा है, हमारा इस्कॉन में हम लाते हैं लोगों में, लाइफ मेंबर बनाओ दिस। तो इस दोनों में क्या अंतर है? हमारा कॉन्शियसनेस। जब हम सोचेंगे मैं चीटी हूँ, तो हम लोग को प्रभुपाद जी का इस्कॉन में ला रहे हैं। और मैं सोचता हूँ जब ये मैं बनाया, हमारा मेरा इस्कॉन है, इसमें मैं पोजीशन ले लूंगा, isn't it? तो रथ यात्रा का मतलब है, ये रथ यात्रा प्रभुपाद जी का इस्कॉन के द्वारा से चल रहा था और चल रहा है, राइट? तो उसमें हम लोग भाग ले रहे हैं, और सब लोग को भाग लेने के लिए विदाई भी दे, आई मीन इनविटेशन भी देते हैं, नॉट विदाई, आमंत्रण दे रहे हैं। तो ये है, ये जगन्नाथ रथ यात्रा का श्रेष्ठ पॉइंट है। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी को कोई प्रश्न? ये ही मुरारे कुंज विहारे। हरे कृष्ण। What you said, when we see the Lord on the street, and when chant his name, it's just pure devotion, pure chant. So is it due to because our mind and possible is very less involved or not involved? What is that? He's saying when we see the Lord in the street and when we chant the name which is there, Not we, people see for the first time. Their chanting is pure. Our chanting may be pure or not pure, we don't know. Your chanting, when you first saw ISKCON, when you first got Prabhupada's book, whatever you said about Krishna and ISKCON and everything, that was all pure. So, actually when we go, we think we are chanting purely, but the people who see and say, hey, kya hai? Jagannath ka Rath Yatra, they are chanting purely. Or somebody even is asking, ye kya hai? और किसी ने बोलता है उनको जगन्नाथ रथ यात्रा है, that Jagannath is pure because it is just being said. Yes, so our chanting will also be pure and more pure than theirs if we are Chiti conscious, not Bhakta conscious. You follow what I'm saying? Yes, it is because of our mind and because of our previous karmas and because of our material desires which are very strong. When we become devotees, they're still acting. So we should think, मैंने एक बार शुद्ध नाम बोला, इसलिए मुझे भक्ति करने का मौका मिला हुआ है, और मैं अभी जो कुछ मेरा दिल में है उसको अलाउ नहीं करूँगा to intrude into this bhakti. This training must be there for devotees. Of course, for that you have to hear. Like I'm speaking, you're hearing. There's no other way. अपने चीटी कॉन्शियसनेस कैसे लेके आएगा, ये मैं आपको पूछना है। सिटी कॉन्शियस करके ऐसा एक है, वो भी नहीं लोग को मालूम है। We are thinking we are in ISKCON. I am coming to the temple, but when I come, I am thinking I am coming into the temple, but I am not even aware of Krishna. I am not even aware of Prabhupada. That is pure consciousness. So you have to hear
from those who, after becoming devotees, have cultivated this idea that so real जो आध्यात्मिक इस्कॉन है उसमें एक चिटी का इस्कॉन है ना, उसमें कितना लोग उसमें मेंबर है हमको नहीं मालूम है, 4-5 ही होगा। हम लोग सोचते हैं मैं इस्कॉन का मेंबर हूँ, नहीं नहीं, वो चिटी इस्कॉन है ना उसमें मेंबर में। तो वो इस्कॉन में जो मेंबर बन जाता है वो बड़ा भक्त है। उनका तरीका अलग है और उनका पावर अलग है। तो मैं जैसा आदमी बहुत टाइम लेगा वहां जाने के लिए। So 1 second. So main thing is touch to know, hearing from the right source. That's very important. ये जो आपने बोला था शुरू, वो भी अच्छे वक्ता से या जो इस्कॉन प्रभुपाद जी का इस्कॉन है, वो वक्ता से सुनने के लिए आध्यात्मिक इस्कॉन, आध्यात्मिक इस्कॉन, not चिटी इस्कॉन। प्रभुपाद से प्रार्थना करिए उनको, प्रभुपाद से प्रार्थना करिए कि मुझे उसके लिए बहुत स्टेप है भैया, बहुत स्टेप है, वो सब डिस्कस नहीं हो रहा है इस्कॉन में। बहुत 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 हजार स्टेप है, वो सब नहीं डिस्कस हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा कुछ बोल सकता है बस, थोड़ा हिंट। ये भी आज ने मैं बोला हम चिटी इस्कॉन में हूँ, राइट? हम सिटी में नहीं, सिटी में। So that is correct consciousness. What do you think, Harsh Govind Prabhu? Good or bad? We should think like that. Why we should think we are part? So Prabhupada is here, but I'm not in the same space. बहुत बोलने का है, आएगा थोड़ा थोड़ा। Any other questions? Yes, at the back. No, आपके पीछे, आपके पीछे, आपके पीछे एक आदमी है। No, you put the hand up. No, I'm telling you, below, behind you. आपने हाथ उठाया ना, तो ले लो ना। हाँ। Whenever we hear the lecture, we have to content it. What is that? When? Whenever we hear something from the devotees, we are asked to content it later. So how to content it without influence of minor causes? It is not that whatever you hear from whoever you should contemplate. It's all bundle. Don't concoct. Who told you like that? No. If the person who is speaking is free of mind, then you contemplate that, you'll be free of mind. If he is not free of mind and you contemplate that, you will be only in your mind. Today, when you go out for Rath Yatra, you should be thinking, wow, people are going to look at Jagannath, they are going to chant purely, amazing. Then your mind is not there, because this is authentic, authoritative. Because Prabhupada said that. You cannot simply say, I will listen to whomever I want and I will contemplate. How should I contemplate? Don't make it cheap. Why you make some general statement like that? Even if you go to a hospital, every doctor is not the same, right? The junior doctor, you go for construction, he knows. Everybody is not a same person. Somebody is a good constructor. Larsen and Toubro is different. So there is always standard. Taratamya, Prabhupada says in first canto. Taratamya hai. Spiritual world may be hai. Everybody is pure, but there is advanced and not so advanced. The spiritual world also. So be very, very careful. Yeah.
We'll stop here. Yes. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा की, इस्कॉन मीरा रोड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक इस्कॉन की, गौर प्रेमानंदी, all glories to assembled devotees. Hare Krishna. हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बात बताई है आप, जो शायद हम कभी सुना नहीं होगा कि यह नाम कैसे आता है। और हम सबको आजादी की कक्षा में रखा है। प्रभुपाद की वजह से हम लोग सब यहाँ आए सेवा करने के लिए, हमको मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उसका अभिवादन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी का यूट्यूब में बहुत सारे छोटे क्लिप्स लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप यूट्यूब से इनके आप वैकुंठ भवन प्रभु से आप सुन लीजिए। तो प्रभु जी का यूट्यूब चैनल है, आपके पास मोबाइल है? बोलिए मोबाइल बोलिए। तो उसमें यूट्यूब में जाइए, उसमें रस राजा दासा RASARAJE तो वहाँ प्रभु जी का चित्र मिलेगा। उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो प्रभु जी ने इंग्लिश में दिया है और नीचे हिंदी में अनुवाद भी है। अभी हिंदी में भी आएगा थोड़े समय में। तो हम चाहेंगे कि लोग सब्सक्राइब करें। अगर आपको सुनना है, जिन्होंने 44 साल से इस काम में है, उनसे सुनेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।